Students, now we explain the complete internal structure in parts of alimentary canal, stomach and different type of parts in digestive system. At first, we explain the internal structure of alimentary canal. So, today we explain the structure of stomach. You know, stomach is the broadest part of alimentary canal and food retain in that region 4 to 5 hours. And main function of this stomach have to masticating the food molecules and break down into smaller form and different type of enzymes, HCl, castrol intrinsic factor, etc. secreted in the region of stomach. To at first explain the structure of stomach. Suppose this is the esophagus and lower part of esophagus found stomach. This is the stomach and this is the esophagus part and this part is folded form and this is duodenum. So, this is duodenum, lower part of stomach. This is esophagus, upper part of the tube-like structure in alimentary canal and open into the stomach region. This stomach divided into 4 regions. One region in the lower part of esophagus. This region is called cardiac region or simple cardiac. It's called the cardiac region or simple cardiac. Second region is in the lateral part of this stomach and this region is called fundus. Fundus region. And a last part in this region, and this region is called pylorus. Pylorus. And this broadest region of the stomach is known as body. So, stomach divided into 4 regions. First, cardiac. Second, fundus. Third, body. And fourth is the pylorus. Body is largest region in stomach. Largest region of stomach is the body and food maximum retain in that region 4 to 5 hours, and then in this region food have to masticated and converted into smaller form. Systole and diastole also present in stomach, and in the time of systole and diastole food have to masticated, and this systole diastole control with the help of nervous system. I explained separately the nervous region of this muscular part that called Orbeck plexus and Meesman's plexus. Okay, students. So, now esophagus have 4 region: cardiac, fundus, body and pylorus. Pylorus is most active digestion place, food maximum digestion in this region. So, food maximum digestion in this region of stomach. So, maximum food digested in the region of stomach. Cardiac, fundus and body also participate to digestion, but their main function to masticating the food molecules. And you know, in the region of the duodenum, that is small intestine part, in this region also food maximum digestion. अब आप सोचोगे सर ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, तो क्वेश्चन आए कि इनसाइड स्टोमक
सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन कहाँ होगा? पाइलोरस में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन कहाँ होगा? तो ड्यूडेनम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इन द रीजन ऑफ द ड्यूडेनम फूड मैक्सिमम डाइजेशन। एंड ये क्वेश्चन आएंगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम का नाम उसमें रह सकता है, बट इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे पाइलोरस के फॉर्म में, फूड मैक्सिमम डाइजेशन इन द स्टोमक रीजन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व होते हैं इसमें, और ये जो वाल्व होते हैं इस रीजन पे या इस रीजन पे, ये एक पाइलोरस रीजन पे वाल्व होते हैं, और 1 पेयर वाल्व इस रीजन पे होते हैं, इस रीजन पे। और ये जो वाल्व होते हैं, इस वाल्व का नाम है, ऊपर कार्डियक रीजन पे है। सो द नेम ऑफ दिस वाल्व इज कार्डियक पाइलोर, कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर वाल्व कह दो पूरा, तो कार्डियक स्पिंक्टर वाल्व। ये क्या करता है? दे हैव टू वेरी प्रोटेक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम पासेस स्टोमक टू अपर रीजन, यानी स्टोमक से फूड को अपर रीजन में जाना नहीं देगा, लेकिन दे हैव टू सपोर्ट फूड एंट्रेंस फ्रॉम ओसोफेगस टू स्टोमक। ओसोफेगस से फूड को इसमें आने देगा, लेकिन इसमें से फूड को इसमें जाने नहीं देगा। और दूसरा होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इस वाल्व का नाम है, ये जो वाल्व है ये पाइलोरिक रीजन पे है, इसलिए इसका नाम है पाइलोरिक। देखो इसका नाम पाइलोरस है, बट इस वाल्व का नाम पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पिंक्टर वाल्व, पाइलोरिक स्पिंक्टर वाल्व प्रेजेंट इन दिस रीजन। और ये क्या करता है? फूड को स्टोमक से ड्यूडेनम में जाने देगा, लेकिन ड्यूडेनम से स्टोमक में रिटर्न होने नहीं देगा। अब कभी कभी किसी में फूड पॉइजनिंग हो जाए या इनडाइजेशन हो जाए, उस समय स्टोमक से फूड पूरा फोर्स लगाता है, तो इस रास्ते से बहुत सारे लिक्विड रिलीज होते हैं, वो लिक्विड हमारे माउथ से आने लगते हैं, तब हमें लगता है कि यार वोमिटिंग होगा, और फिर हमें फील होता है, और फिर ये एक्स्ट्रा जर्क होता है रिफ्लेक्स फॉर्म में, और ये एक्स्ट्रा जर्क में ये खुल जाते हैं, तब वोमिटिंग होता है। तो वोमिटिंग इज एबनॉर्मल प्रोसेस, when abnormal condition have to happen in that time, ये वाल्व खुल जाते हैं, और ये वाल्व जो इधर प्रेशर दे रहे थे वो ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो मोमेंट्स होकर सारे फूड को बाहर निकाल दिया। लेकिन इन जनरली जब फूड हम नॉर्मल खाते हैं और हेल्दी कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बॉडी में, तो ये वाल्व फूड के आते ही बंद हो जाते हैं और किसी भी कंडीशन में खुल नहीं सकते। तो यहाँ पर फूड जो होते हैं मैस्टिकेट करते हैं, यानी ये जो स्टोमक है ये इस प्रकार सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल ये करते हैं, और सिस्टोल डायस्टोल होता है तो उस समय फूड के ऊपर जब प्रेशर लगता है, और अगर ये इतना प्रेशर को झेल नहीं सके तो फूड तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसको इतना प्रेशर झेलने की आदत है। और इसका कारण है इस पूरे स्टोमक में एक विशेष गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, पिट्स बहुत सारे इसके दीवार पे गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। ये पिट्स क्या करते हैं? इसके प्रेशर को कम कर देते हैं, ये वर्क तो कर रहा है लेकिन प्रेशर को कम करते हैं और इसके सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा फूड ले लो, उसके बाद भी आपका स्टोमक ब्लास्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। कारण क्या है? इसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, एंड इट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स, एंड पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में गैस्ट्रिक पिट्स है। और गैस्ट्रिक पिट्स जो इसके पास हमारे स्टोमक में नंबर है वो नियर अबाउट 50 करोड़, 35 to 50 करोड़ होते हैं। तो ये ह्यूमन में 50 करोड़ एडल्ट स्टेज में ये गैस्ट्रिक पिट्स के नंबर है 50 करोड़, देयर नंबर, यानी इतने करोड़ नंबर में होते हैं। और कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? तो ये गैस्ट्रिक पिट्स ऑक्यूपाई करते हैं 300 mm² एरिया, इतने एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई यानी इतने एरिया में फैले होते हैं। तो 300 mm² को ऑक्यूपाई करके ये हमारे पूरे स्टमक रीजन को नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं और इसके प्रेशराइज फॉर्म को भी कम करते हैं, इसलिए फूड आने के बाद भी, सिस्टोल डायस्टोल होने के बाद भी नॉर्मल वर्क करते हैं। अब देखो, इन दिस रीजन फाउंड a dark and big area, and this big area is called greater curvature. greater curvature मतलब होता है मोड़, घुमाव, तो it is greater curvature, its name is greater curvature। अब अगर हम इस तरह से घूम जाएं तो हमारे ये लेफ्ट साइड में होगा, तो it's found in
लेफ्ट साइड, ये हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे। और इसकी खास बात देखें तो ये देखने में कॉन्वेक्स शेप का होता है, तो इट्स लुकिंग लाइक कॉन्वेक्स शेप, इसका शेप कॉन्वेक्स जैसा होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा कार्वेचर बन रहा है, और ये जो कार्वेचर यहाँ पर बन रहा है ये अंदर की तरफ जा रहा है और इसे छोटा सा बन रहा है, इसलिए इसे लेसर कार्वेचर कहते हैं, लेसर कार्वेचर। और लेसर कार्वेचर जो होते हैं ये राइट साइड में होते हैं, और ये देखने में इट्स लुकिंग लाइक कॉन्वेक्स शेप, ये कॉन्वेक्स शेप का दिखता है। तो लेसर कार्वेचर लुकिंग लाइक कॉन्वेक्स शेप, और इट लुकिंग लाइक कॉन्केव शेप, it looking like concave shape, and it looking like convex shape। ठीक है, ये फैला हुआ है कॉन्वेक्स रूप में हो गया, और अंदर की तरफ है तो कॉन्केव रूप में हो गया। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स शेप, ये राइट साइड में होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा। इसके 4 रीजन है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। पाइलोरस रीजन पे फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा स्टोमक के पार्ट में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट में बात करें तो ड्यूडेनम में फूड का सबसे अधिक डाइजेशन होगा। अब देखो स्टोमक जो होता है, पूरे स्टोमक की बात करें तो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। तो स्टोमक सिचुएटेड इन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में ये सिचुएटेड होगा। अब एक बात, कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, बट उस कन्फ्यूज़न को दूर रखें। इस रीजन पे एक मस्कुलर ग्रोथ होता है, और ये जो ग्रोथ होता है ओसोफेगस रीजन पे होता है। इसका फंक्शन सिर्फ इसके पेरिस्टॉल्सिस को कंट्रोल करना होता है, फूड को आने जाने से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो नाम है, इसका नाम है ओसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको ओसोफेजियल स्फिंक्टर के पॉइंट बोलते हैं। ये कार्डियक से टच करता है, बट कार्डियक से इसका कोई लेना देना नहीं है, कार्डियक अपना वर्क अपनी तरफ से करेगा। तो कार्डियक स्फिंक्टर कार्डियक रीजन पे स्टोमक में, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरिक रीजन में स्टोमक में, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एरिया बॉडी, ऊपर का अपर फॉर्म एरिया फंडस, ग्रेटर कार्वेचर, लेसर कार्वेचर और ड्यूडेनम का रीजन। ये था स्टोमक के पार्ट। एक बात याद रखना, स्टोमक में जब भी कोई फूड आएगा तो इसमें सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो फूड के फॉर्म में कुछ भी आएगा तो प्रोटीन डाइजेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा इन स्टोमक। स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मिल्क कोई खा रहा है, पी रहा है, तो उस मिल्क में से जो भी उसके अंदर रेनिन पार्ट्स होते हैं ब्रेक डाउन करके उसको कैल्शियम पैराकार्बोनेट में कन्वर्ट करने में ये रीजन एक्टिवेट है। पनीर खा रहा है तो भी इस रीजन पे पनीर आकर के प्रोटीन के पार्ट्स के रूप में उसका डाइजेशन होगा। यानी प्रोटीन का डाइजेशन और प्रोटीन का जो एक्टिव रूप में डाइजेशन हम बात कर लें, इसका हम एक्टिव शब्द का और अगर हम प्रयोग कर लें तो प्रोटीन सक्रिय पूर्वक सबसे ज़्यादा फंक्शनल रूप में अगर एक्टिवेट रूप में डाइजेशन हो रहा है तो वो हो रहा है इस रीजन पे। अब आपको देखना होगा कि इसके अंदर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। एक मिनट में रिकॉल कर देता हूँ। ये ओसोफेगस है, स्टोमक है। दिस स्टोमक हैव टू 4 रीजन, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। बॉडी इज द लार्जेस्ट रीजन, कार्डियक is the just lower region of esophagus. Cardiac region found cardiac sphincter valve. Pyloric region found pyloric sphincter valve. This is the duodenum. Duodenum food maximum digestion in form of the small intestine, but inside stomach the maximum digestion in the region of pylorus, and fundus body and cardiac also participate to digestion, but their concentration point of the digestion is low in comparison to pylorus part, and their main function to masticating the food molecule, and food molecule convert into small form. Greater curvature and small curvature, two curvature is present. Greater curvature found in left side and looking like convex shape, and lesser curvature found in right side and looking like concave shape.
ओके, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि हार्बोरस एनिमल जैसे कि गाय, बकरी, हिरन, कुछ भी हो, तो उसमें स्टोमक किस तरह के होते हैं? कोई भी हार्बोरस एनिमल यानी शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उसमें, तो देखो ये इसके स्टोमक्स होते हैं और इसमें ये जो पार्ट्स है फ्रंटल, ये स्टोमक का स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रखा हूँ। ये हार्बोरस एनिमल में स्टोमक के पार्ट्स हैं और इसमें ये है रेटिकुलम, रेटिकुलम के पॉइंट्स है, आगे वाले पार्ट को रेटिकुलम कहते हैं। ये जो पार्ट है फूड इस रास्ते आकर के यहाँ पर एंटर करता है और यहाँ पर कुछ देर तक रहता है। In that time they have power to digestion of the food and return of the food from this region to this region। यानी क्या होता है कि जैसे मान लो गाय ने फूड लिया तो उसके माउथ से यहाँ पर आकर जमा हो गया। ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को ओमेशम कहते हैं, ओमेशम। और ओमेशम में फूड आने के बाद ये फूड यहाँ से यहाँ रिटर्न आ सकता है। जैसे गाय को कहीं फूड मिल गया, तो बकरी को फूड मिल गया तो उसने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया विदाउट मैस्टिकेटिंग, और फूड इसके इस रास्ते से यहाँ तक पहुँच गया। ओमेशम में आने के बाद, रेटिकुलम से होकर ओमेशम में आने के बाद फिर जब वो कहीं बैठती है तो फिर वो जुगाली करती है, यानी माउथ में वापस फूड को रिटर्न लाती है। अब ये फूड वापस इस रास्ते से रेटिकुलम से होता हुआ यहाँ तक आ जाता है और ये माउथ में जा कर के फूड फिर से मैस्टिकेट होता है और मैस्टिकेट होकर के फिर इस रीजन पे एंटर होता है। ये जो रीजन होता है इस रीजन को र्यूमेन कहते हैं, र्यूमेन। ऊपर र्यूमेन होता है, नीचे भी र्यूमेन होता है, तो अपर र्यूमेन, लोअर र्यूमेन, ये र्यूमेन का क्षेत्र है। और ये जो एरिया होता है फिर इस एरिया में फूड जो होता है इस एरिया में से इंटरनल कनेक्शन होते हैं जिनसे ये शब ओमेशम में, नीचे वाला जो पार्ट है शब ओमेशम, वहाँ तक ये जाता है। तो ओमेशम, सब ओमेशम, इसमें रूब्रम, सब रूब्रम, र्यूमेन, न जाने ऐसे कई सारे, RUMEN होगा, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स में जा सकते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि रेटिकुलम, ओमेशम, सब ओमेशम, र्यूमेन। र्यूमेन इंटरनली कनेक्ट होते हैं इसमें, फिर ये यहाँ से फूड जैसे यहाँ से इंटरनली कनेक्ट है, यहाँ से ट्यूब इंटरनली कनेक्ट है और फिर ये वापस इसमें आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ डाइजेस्ट होकर के फिर ये जाएगा आगे। इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चला जाता है, फिर फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो भी होना है वो होता है। तो ये कुछ 4 नाम याद रखो, इनमें से कोई एक नाम आ सकता है। जैसे रेटिकुलम इंट्रेंस पाथ का पहला पॉइंट जहाँ पर फूड कुछ समय तक रहता है, ओमेशम। फिर इसमें र्यूमेन नाम का एरिया होता है जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है और फिर ये यहाँ से होता हुआ इंटरनल पार्ट से आगे क्यों जाता है तो इसको सब ओमेशम कहते हैं। तो ये 2-3 नाम याद रखना, हार्बोरस एनिमल के रेस्पेक्ट में ये नाम आ सकते हैं। ओके, अब तक आपने नर्वस सिस्टम में ब्रेन के पॉइंट्स में देखा था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ग्रुप में है। अब आप पढ़ रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके इंटरनल पार्ट में डाइजेशन के जो वाल होते हैं उसमें भी एक नर्वस पार्ट होते हैं जिससे मैं अब क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ गए तो ये जो स्टोमक है ये सिस्टोल डायस्टोल कैसे करते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल है, ओसोफेगस है, कोई भी पार्ट है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट सिस्टोल डायस्टोल किस तरह से करते हैं इसे आप सीख पाओगे। तो देखो हमारे पास, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के मैं आपको बता चुका हूँ। एक का नाम था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये दोनों तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किससे कैसे कनेक्ट हो रहा है और किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अब देखो एक पार्ट और होता है जो अब बता रहा हूँ, इस पार्ट में डाइजेशन में आता है तो इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। इसका नाम है 3rd पॉइंट में एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये भी
इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। अब मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ। इंटेरिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है माइजेंट्रिक या इसका नाम कॉमन है ऑर्बैक प्लेक्सस। ऑर्बैक प्लेक्सस ये न्यूरॉन्स के छोटे छोटे सिनेप्सिस पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़े होते हैं, इसको प्लेक्सस कहते हैं, माइजेंट्रिक प्लेक्सस। और इसमें दूसरा होता है सब म्यूकोशल या मेसनर प्लेक्सस। मेसनर प्लेक्सस, ये जो दो नाम है इस पे फोकस करना है। एक का नाम मैजेंट्रिक या ऑर्बैक प्लेक्सस, ये दोनों नाम कॉमन है। दूसरा सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मिसनर प्लेक्सस, ज़्यादातर मिसनर प्लेक्सस के नाम और ऑर्बैक प्लेक्सस के नाम, यही नाम ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब देखो हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है, इस एलिमेंट्री कनाल में 4 लेयर होते हैं और स्टोमक रीजन पे केवल 5 लेयर होते हैं। तो जनरली 4 लेयर्स होते हैं। और 4 लेयर के पॉइंट्स कैसे फॉर्म करें, तो देखो जैसे बच्चों ये मान लो स्टोमक का एक पार्ट है, स्टोमक के वाल को काटा गया, एलिमेंट्री वाल के काटा गया, किसी भी तरह के, मतलब मैं यहाँ स्टोमक ना कह के एलिमेंट्री कैनाल या किसी भी तरह के डाइजेस्टिव जो ट्यूब होता है उस ट्यूब के पॉइंट्स को मैं दिखा रहा हूँ कट के फॉर्म में, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन के फॉर्म में। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है स्टोमक के एलिमेंट्री कैनाल में, इस लेयर को बोलते हैं सेरोसा। सेरोसा का इसमें लेयर होता है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इस जगह पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, लंबवत पेशी ये होता है। ये जो होता है इसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, हिंदी में लंबवत पेशी कहते हैं। और इसके अंदर सर्कुलर मसल्स होता है, इसके अंदर में सर्कुलर मसल्स होते हैं, गोलाकार पेशी, ये सर्कुलर मसल्स है। ये जो देख रहे हो इसे सर्कुलर मसल्स कहते हैं, सर्कुलर मसल्स, गोलाकार पेशी। गोलाकार पेशी के अंदर में इस तरह के स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं जिसमें ल्यूमेन होता है और इसके अंदर इस जगह पे बहुत सारे विलाई और विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई इस जगह पे पूरे एरिया में। ऐसे, और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो इस पार्ट में, ये जो रीजन होता है इस पार्ट में म्यूकोसा का लेयर होता है, म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा के अंदर ये जो देख रहे हो इस पॉइंट को विलाई कहते हैं। और विलाई के ऊपर अगर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हो, हिंदी में विलाई को रसांकुर कहते हैं, रसांकुर। और अगर इसके ऊपर जैसे मान लो सपोज करो ये विलाई है एक, और इस विलाई के ऊपर में बहुत सारे और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, अगर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और निकल रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा माइक्रोविलाई, इसका नाम हो गया माइक्रोविलाई। इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं, सूक्ष्मांकुर के रूप में माइक्रोविलाई, ओके, यानी विलाई। और ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप पॉइंट जहाँ से फूड पास हो रहा है और आगे जा रहा है, इस पार्ट को ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन का एरिया। ये था एक स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल किसी भी रीजन का एक छोटा सा टीएस है। और टीएस पार्ट में कौन कौन से लेयर होते हैं वो मैंने आपको दिखाया। इसी को अब मैं इन जनरल डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। इसी का दूसरा फॉर्म देखो, जैसे सबसे बाहर सरोसा का लेयर, तो मैंने यहाँ पर सबसे बाहर ऑफकोर्स
सेरोसा का लेयर बनाया। सेरोसा के लेयर के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, तो मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म को इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होंगे, तो इसलिए यहाँ पर, और इसका न्यूक्लियस पार्ट यहाँ पर मैंने दिखाया। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर सर्कुलर मसल्स लेयर, ये सर्कुलर मसल्स है, गोलाकार पेशी। ये यहाँ पर मैंने गोलाकार पेशी को दिखाया। ये है सर्कुलर मसल्स। इसके नीचे यहाँ पर इस तरह के पार्ट जो विलाई के पॉइंट्स में उभर रहे हैं और ऐसे डायग्राम को फॉर्म कर रहे हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये म्यूकोसल लेयर का पार्ट है सेंटर में, और ये अगर इसको फोल्ड अप किया जाए दो तरफ, तो एक तरफ से इधर और एक तरफ से इधर, दो तरफ से दिखेंगे। तो इस म्यूकोसल लेयर को मैं टू फॉर्म में दिखा रहा हूँ, बट दोनों ही म्यूकोसल के पॉइंट को ही शो करेगा, बट एक ही रहने दो, अभी दूसरे डायग्राम में दो शो कर दूंगा। अब देखो इसमें आपने क्या क्या देखा। सबसे नीचे लोअर पार्ट में, मतलब ये बाहर का रीजन है आउटर, और ये इनर रीजन है, अंदर का रीजन है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे नीचे म्यूकोशा, म्यूकोशा का पॉइंट ये देख रहे हो, म्यूकोशा सबसे अंदर, और सबसे बाहर सेरोसा। तो ये सबसे बाहर सेरोसा, तो सेरोसा ये एक लेयर बन गया, और इसके बाद ये दोनों मिलकर के ये एक लेयर बनेंगे। इसमें इसका क्या नाम है, तो इसका नाम एक साथ लिख देते हैं। इसका जो नाम है, इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, हिंदी में लंबवत पेशी, और इसका नाम सर्कुलर मस्कुलर लेयर, इसका नाम है गोलाकार पेशी। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मस्कुलर रीजन कहते हैं। और ये मस्कुलर रीजन, ये पहला रीजन हो गया सेरोसा, मस्कुलर रीजन हो गया सेकंड लेयर, ये दोनों मिलकर के सेकंड लेयर को फॉर्म करेंगे, और इनके बीच में न्यूरॉन्स होते हैं। और ये हो गया इन दोनों के बीच में गैप, और इस गैप का नाम हो गया सब म्यूकोसा, ये हो गया तीसरा लेयर, और ये म्यूकोसा हो गया चौथा लेयर। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, स्टोमक हैं या जो भी हैं, उसमें 4 लेयर है, लेकिन स्टोमक के रीजन पे एक लेयर ज़्यादा होता है, उसको मैं अलग से डायग्रामेटिक पार्ट में आपको दिखाऊंगा। बट अभी इन जनरल जो सब में होता है वो देखो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में जो वाल होते हैं ये इस तरह से 4 लेयर से बने होते हैं। यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर्स पाए जाते हैं, 4 लेयर्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं उसमें 4 लेयर मुख्य रूप से, कौन कौन सा, तो सेरोसा, मस्कुलर लेयर, तीसरा सब म्यूकोशा एंड चौथा म्यूकोशा। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंटली जिस बात को मैं कर रहा था कि यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि मेजेंट्रिक एंड सब म्यूकोसल, या मैं कह रहा था कि ऑर्बिक प्लेक्सस या मैसनर प्लेक्सस जो होते हैं ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यानी ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक, डाइजेस्टिव जो पार्ट हैं उसके अंदर पाए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो सपोज करो कि इस तरह के न्यूरॉन्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, और ये न्यूरॉन्स इस रीजन पे पाए जा रहे हैं, और ये न्यूरॉन्स इस तरह से फैले हुए हैं। तो ये न्यूरॉन्स इस तरह से पूरे एरिया में, पूरे जो एरियाज़ होते हैं उसमें एक पाए जा रहे हैं। और दूसरा जो न्यूरॉन्स है वो, जैसे मान लो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, सपोज करो ये कलर से, और ये इस तरह से ये न्यूरॉन्स, इसका डायरेक्शन ऐसा है, और ये ऑल और नॉन रूल पे काम कर रहा है, ये तो आप जानते हो। अब देखो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ से सिनेप्सिस पार्ट निकल करके ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ सिनेप्सिस पार्ट निकल करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सिनेप्सिस पार्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सिनेप्सिस पार्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इसका जो सिनेप्सिस पार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका भी सिनेप्सिस पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है,
इसका भी सिनेप्सिस पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका भी सिनेप्सिस पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। ये डेंड्रॉन डेंड्राइट रीजन से ये एराइज कर सकते हैं और ये इस तरह से ये चारों तरफ फैल रहे हैं। अब देखो इसमें ये जो पार्ट्स होते हैं ये दोनों में इंटर कनेक्शन फॉर्म होते हैं और ये यहाँ से जैसे इस रीजन से एराइज होकर के इसके साथ आकर जुड़ गए, यहाँ से अराइज होकर के इसके साथ आके जुड़ गए, यहाँ से अराइज होकर के इसके साथ आके जुड़ गए, यहाँ से अराइज होकर इसके साथ आके जुड़ गए और कुछ इसको पार करके नीचे तक यहाँ फैले होते हैं, कुछ यहाँ से पार होकर नीचे तक फैले होते हैं। इसी प्रकार से इसका भी कुछ पार्ट यहाँ से पार होकर के ऊपर तक जा सकता है, यहाँ से पार होकर के ये ऊपर तक जा सकता है। ये एक नर्व इम्पल्स का नर्व का ट्रांसमिशन फ्लो है और ये जो होता है ये ऊपर की तरफ ज़्यादातर इसके कनेक्शन पॉइंट्स जा रहे हैं, इसलिए इसको एसेंडिंग न्यूरॉन्स कहते हैं, एसेंडिंग न्यूरॉन्स। और इसमें कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे इसके फ्लो, इसलिए इस पार्ट को डिसेंडिंग न्यूरॉन्स कहते हैं, डिसेंडिंग न्यूरॉन्स कहते हैं, एसेंडिंग और डिसेंडिंग न्यूरॉन, हिंदी में आरोही और अवरोही न्यूरॉन्स। अब ध्यान दो, ये जो एसेंडिंग न्यूरॉन्स है यहाँ से जो भी केमिकल्स निकलते हैं वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में होंगे और डिसेंडिंग से जो केमिकल निकलेंगे वो स्पेसिफाइड फॉर्म में होंगे। एक एक्साइटेटरी के रूप में काम करेगा तो एक इनहिबिटरी के रूप में काम करेगा, यानी एक अगर किसी चीज़ को उद्दीपित कर रहा है तो अगला उस काम को रोक देगा, इस प्रकार से होगा। और ये जो मसल्स देख रहे हो इन दोनों मसल्स के बीच में ये कनेक्शन बनाते हैं और ये जो कनेक्शन बन रहा है इस कनेक्शन पॉइंट के कारण इस रीजन को, इस कनेक्शन पॉइंट के कारण, ऐसे तो इसका नाम असेंडिंग इसका नाम डिसेंडिंग, बट इस रीजन को, इस रीजन का नाम है, इधर मेरे पास जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, इस रीजन का नाम है ऑर्बैक प्लेक्सस, ऑर्बैक प्लेक्सस, यानी इसे ऑर्बैक प्लेक्सस कहते हैं। या मैंने अभी पहले नाम बताया था ऑर्बैक प्लेक्सस का नाम मेजेंट्रिक प्लेक्सस है, तो इसको आप मेजेंट्रिक प्लेक्सस भी बोल सकते हो, माइजेंट्रिक प्लेक्सस। यानी इस न्यूरॉन का जो नेटवर्क है ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल रीजन पे पूरी तरह से फैले हुए हैं। इसी तरह से सब म्यूकोसा रीजन पे भी न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। मान लो इसको मैं वाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से इस रीजन पे भी न्यूरॉन्स है और इस रीजन पे जो न्यूरॉन्स हैं ये न्यूरॉन्स यहाँ पर एक दूसरे से ऐसे इनेक्टेड फॉर्म में सिनेप्सिस फॉर्म करते हैं और ये न्यूरॉन्स यहाँ पाए जाते हैं। ये जो न्यूरॉन्स यहाँ देख रहे हो ये न्यूरॉन्स का जो एरिया है ये एरिया सब म्यूकोसा का एरिया है और सब म्यूकोसा होने के कारण इसे सब म्यूकोसल प्लेक्सस बोलते हैं। इसका नाम है सब म्यूकोसल। के स्टूडेंट भूल जाते हैं तो स्टूडेंट को आसानी से याद रहेगा कि सब म्यूकोसा रीजन पे सब म्यूकोसल प्लेक्सस पाए जाते हैं। और इसी का दूसरा नाम मैंने लिखा था मैसनर प्लेक्सस, यानी इसमें मैसनर प्लेक्सस भी कह सकते हो, मैसनर प्लेक्सस भी इसे आप कह सकते हो, यानी ये मैसनर प्लेक्सस के रूप में हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो सब म्यूकोसा रीजन है इस सब म्यूकोसा रीजन में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं है, सब म्यूकोसा रीजन में जो है ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी के अलावा इसमें लिम्फेटिक वैसल्स है, लिम्फेटिक वैसल्स यानी लसिका ग्रंथि, लिम्फेटिक वैसल्स के अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के कैपिलरीज, स्मॉल कैपिलरीज हैं, स्मॉल कैपिलरी जो बहुत छोटा होगा, स्मॉल कैपिलरीज है। इसके बाद न्यूरॉन्स तो है ही है, न्यूरॉन्स का जाल तो आप देख ही रहे हो। तो ये सभी पार्ट इस रीजन पे होगा, सब म्यूकोसल रीजन पे। और ये जो पार्ट हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आप मान लो एक कल्पना करो कि एक ट्यूब की कल्पना कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में, मैं इस ट्यूब में से इसकी कट ले लिया एक और इसका कट को मैंने यहाँ ड्रॉ किया और इस कट को फिर मैंने इस वेरीफाई फॉर्म में यहाँ ड्रॉ किया। यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो दीवार होते हैं ये राउंड फॉर्म में होते हैं, यानी ऐसा, और इस पूरे राउंड फॉर्म में चारों तरफ फैले हुए हैं ऐसा स्ट्रक्चर, और इसके बीच का जो पार्ट है ये ल्यूमेन के रूप में है यहाँ पर, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे जैसे आप जाओगे ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और फिर इस स्ट्रक्चर को मैंने ब्रॉड फॉर्म में ऐसा दिखाया है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको दिखा रहे हैं। इसमें जो न्यूरॉन्स का जाल है इसको समझना है। क्यों? क्वेश्चन आता है कि जैसे हार्ट काम करता है तो हार्ट को पेरिस्टोलिसिस सिस्टोलिसिस कराने के लिए ऐसे नोड है,
और भी दूसरे ऑर्गन है उसके लिए कुछ ना कुछ है, कार्डियक मसल्स होता है उसमें। लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि जब भी हम फूड खाते हैं तो जब ओसोफेगस से पार हो रहा है तो क्यों पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कर रहा है, या स्टोमक में जा रहा है तो स्टोमक क्यों फूड को मैस्टिकेट कर रहा है। जैसे आपने कभी ठीक से फूड को नहीं चबाया, उसके बाद भी फूड आपके गले से पार होकर स्टोमक में पहुंच गया, तो स्टोमक का दायित्व बनता है कि वो फूड को पूरा मैस्टिकेट कर देगा। तो फूड को जब वो मैस्टिकेट करेगा तो उसको सिस्टोल करने के बाद डायस्टोल करना पड़ेगा। तो ये अपने आप कैसे होगा, उसके पास कोई ऐसा सिग्नल पॉइंट तो है नहीं, ऐसे नोड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। उसके वर्क को कंट्रोल वे में कराएगा एंट्रिक नर्वस सिस्टम। दिस एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब तक मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रूप में होता है, और आपने इनके कनेक्शन भी देखे हैं प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फॉर्म में। और ये कनेक्ट होकर के जब किसी एलिमेंट्री कनाल के रीजन में, स्टोमक के रीजन में, या किसी भी पूरे डाइजेस्टिव पाथ में कहीं भी एंटर होते हैं तो उसको एंट्रिक बोलते हैं। इसको कुछ साइंटिस्ट सेकंड ब्रेन भी कह देता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही हमारे वाइटल सिस्टम जो डाइजेस्टिव फॉर्म में वो वर्क करते हैं। अब बात आते हैं कि इसमें दो पार्ट है, मेजेंट्रिक और इसमें एक है मैसनर। अगर आप इस डायग्राम को समझ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर के बीच का जो एरिया है इसी को बोलते हैं ऑर्बैक प्लेक्सस या मैजेंट्रिक प्लेक्सस। यानी मैजेंट्रिक प्लेक्सस जो होता है सर, ये कहाँ होता है? तो इट फाउंड इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एंड सर्कुलर मस्कुलर लेयर। यानी ये जो होते हैं लंबवत पेशी और गोलाकार पेशी के बीच में पाए जाते हैं। और इसका कनेक्शन देख रहे हैं, इसमें एसेंडिंग डिसेंडिंग तो दोनों तरह के इसमें न्यूरॉन्स के पार्ट फंक्शनल फॉर्म में काम कर रहे हैं। अब दूसरा जो पार्ट्स है इसमें आप देख रहे हो कि ये जो रीजन है इसको सर्कुलर मसल्स कहते हैं, और ये रीजन को म्यूकोसा कहते हैं, और ये बीच का रीजन को सब म्यूकोसा कहते हैं। यानी ये जो रीजन होता है इसी को बोलते हैं सब म्यूकोसल या मैसनर प्लेक्सस। तो आपसे पूछा जाए कि सर ये मैसनर प्लेक्सस कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसके दो आंसर दे सकते हो। पहला आंसर देख सकते हो, इट फाउंड इन सब म्यूकोसा, यानी ये सब म्यूकोसा के क्षेत्र में पाया जाता है। और दूसरा आंसर दे सकते हो कि इट फाउंड इन बिटवीन, किसके बीच में? तो ऊपर सर्कुलर मसल लेयर है तो सर्कुलर मसल्स लेयर, एंड नीचे म्यूकोसा है, इन दोनों के बीच में है तो सब मसल लेयर एंड म्यूकोसा, इन दोनों के बीच में ये पाए जाते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट के फंक्शन को मोटिलिटी यानी एक सक्रियता प्रदान करेगा, और सक्रियता के रूप में ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। यहाँ पर मोटिलिटी सक्रियता के रूप में है, और इसके सामान्य कार्य होते हैं उसको बनाए रखेगा, सिस्टोल डायस्टोल को मेंटेन यही करेगा। और ये क्या करेगा? इसका काम होगा लोकल, ये लोकल फंक्शन करेगा। इसमें जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पर आप खा रहे हो तो खाने के बाद जब ये फूड में यहाँ से ल्यूमेन से गुजर करके आगे बढ़ेगा तो फूड को एक बाय एक स्टेप से आगे बढ़ाना। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबा है, इतने सारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेशर फॉर्म है, उसमें से फूड पास हो रहे हैं, तो पास करने में उस समय जो सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है उसमें मैसनर प्लेक्सस पार्टिसिपेट करेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब सवाल आता है कि सर ये वर्क कैसे करता है, ये सिस्टोल डायस्टोल करता कैसे है? तो एक और डायग्राम बना रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा कि सिस्टोल डायस्टोल करता कैसे है। बच्चों मैं इसे बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से सिस्टोल डायस्टोल के फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल स्टोमक के रीजन पे होते हैं। एट फर्स्ट यू नो दिस इज द आउटर लेयर और इसका नाम है सेरोसा। उसके नीचे वही पार्ट लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर के रूप में, ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इसके बाद इसमें
सर्कुलर मस्कुलर लेयर, और ये दोनों मिलकर के मस्कुलर लेयर को फॉर्म करते हैं, मस्कुलर लेयर। और ये मस्कुलर लेयर जो है ये सेरोसा फर्स्ट हो गया, मस्कुलर लेयर सेकंड फॉर्म हो गया, और इसके नीचे एक ऊपर बनाया था मैंने ऐसे फॉर्म में, अब एक मान लो ये फोल्डेड फॉर्म में था तो ऊपर नीचे दोनों साइड से आ सकता है, तो यहाँ पर मैं 2 सेरोसा के पॉइंट बना रहा हूँ, बट 2 बनाने से एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह से ये वर्क करते हैं फूड को आगे पीछे ले जाने में, मूव कराने में। इसमें ये विलाई के पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं, इसके नीचे क्योंकि विलाई माइक्रोपेलेट पूरा राउंड है तो एक ऊपर एक नीचे में बना सकता हूँ, तो एक इस तरह से बने हुए हैं। और ल्यूमेन का रीजन जो बीच का खोखलापन होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं, तो ल्यूमेन के रीजन से पास आउट करेगा। ऐसा नहीं कि 2 सेरोसा का लेयर है, सेरोसा का लेयर एक ही है, बट मैंने फोल्डेड फॉर्म को दिखाने की यहाँ कोशिश किया है। देखो ये जो होता है ये भी म्यूकोसा, ये भी म्यूकोसा, तो दोनों ही म्यूकोसा का लेयर है। और ये जो बीच का गैप है जो मैंने गोल फॉर्म में बनाया था और बीच में गैप था, उस गैप को ल्यूमेन कहते हैं, तो ये ल्यूमेन का एरिया हो गया। और ये जो पार्ट्स है ये तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल तो ट्यूब जैसा है, और उस ट्यूब में से फूड को पास होकर के आगे जाना है, यानी फूड तो यहीं से पास होगा। तो फूड जब आपने लिया तो इस रास्ते एंटर किया, इस एरिया को ओरल एरिया कहते हैं, यानी मुख गुहा का क्षेत्र है, वहाँ से एंटर कर रहा है ओरल एरिया। और ओरल एरिया मान लो आपने एक रोटी खाया, ये मान लो रोटी है, तो रोटी टुकड़ों में आया, और ये मान लो कोई भी फूड पार्टिकल्स है। अब ये फूड पार्टिकल्स जो होता है इसे आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ करके जहाँ से निकलेगा इसे एबोरल रीजन कहते हैं, एबोरल रीजन। अब ये आगे बढ़ता जाएगा और इसमें फूड का डाइजेशन भी होता जाएगा। कैसे फूड आगे बढ़ेगा, कैसे स्टोमक सिस्टोल डायस्टोल करेगा, उसी को यहाँ क्लियरली समझना है। और आप जानते हो कि इन दोनों के बीच की जो गैप होती है इसे सब म्यूकोसा कहते हैं, तो सब म्यूकोसा। तो पहला लेयर हो गया सेरोसा, सबसे बाहर का लेयर, ये सबसे आउटर लेयर है और इसे बाहर का लेयर कहते हैं। दूसरा मस्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की तरफ सर्कुलर। तीसरा सब म्यूकोसा, और चौथा लेयर हो गया ये सब म्यूकोसा के फॉर्म में, ठीक है। ये ल्यूमेन का एरिया, गुहा, ल्यूमेन का मतलब यहाँ पर कैविटी कह सकते हो, कैविटी का क्षेत्र गुहा के रूप में, और यहाँ से फूड पास होना है। ये फूड कैसे यहाँ से पास होकर आगे जाएगा इसी को मैं समझा रहा हूँ। और यहाँ पर आप जानते हो जो भी न्यूरॉन्स है, तो मैंने न्यूरॉन्स को दिखाया था यहाँ पर ऐसे। अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, 2-3 ही न्यूरॉन्स के फॉर्म दिखा रहा हूँ, होगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कन्फ्यूज़न क्लियर ना हो और ये नॉर्मल समझ में आए। दूसरा कलर से मैं दिखा रहा हूँ दूसरे तरह के न्यूरॉन्स को ऐसे। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इससे सिनेप्सिस पार्ट निकल करके आगे की तरफ जा रहे हैं, इससे भी निकल करके आगे की तरफ जा रहे हैं, इससे भी निकल करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ इसमें से निकल करके नीचे डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं, और कुछ इसमें दोनों में इंटरकनेक्शन में काम आते हैं। फिर यहाँ से निकल करके नीचे की तरफ जा सकते हैं, ऐसा होगा। फिर भी इसका एरिया ऊपर है, इसलिए इसे एसेंडिंग न्यूरॉन कहते हैं, एसेंडिंग न्यूरॉन यानी ऊपर का। और ये नीचे से निकल करके यहाँ से नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को नीचे भेजेंगे, यहाँ से नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को नीचे भेजेंगे, नर्व इम्पल्स को नीचे भेजेंगे, और कुछ इसमें से कनेक्ट होकर यहाँ कनेक्ट रहेगा, और कुछ इसको पार करके यहाँ तक जा सकता है। तो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं यहाँ तक पार करके यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद भी ये नीचे के क्षेत्र में है, इसलिए इसे डिसेंडिंग न्यूरॉन कहते हैं, डिसेंडिंग न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन 2 हो गया, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। और इसके नीचे यहाँ पर एक तीसरे टाइप के न्यूरॉन्स के पॉइंट्स है, ये ऐसा। और ये सभी न्यूरॉन इससे इंटरकनेक्टेड सिनेप्स फॉर्म को
ड्रॉ करते हैं और ये सिनेप्स फॉर्म को बना कर रखते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं मिशनर प्लेक्सस, मिशनर प्लेक्सस। और अभी भी मैंने बताया था इन दोनों एरिया, जो ये एरिया में है, इसका नाम है ऑरबैक प्लेक्सस, ऑरबैक प्लेक्सस। और मैंने कहा था ऑरबैक प्लेक्सस का दूसरा नाम है माइजेंट्रिक प्लेक्सस, माइजेंट्रिक प्लेक्सस। या आपको जो भी नाम अच्छा लगे एक नाम याद कर लो। और मिशनर प्लेक्सस का मैंने बताया था सब म्यूकोसा के क्षेत्र में है, इसलिए इसे सब म्यूकोशल प्लेक्सस भी कहते हैं। तो आपको जो नाम अच्छा है दोनों लगे में वो याद कर सकते हो। क्लियर? यानी मिशनर प्लेक्सस सर्कुलर मसल्स और इसके म्यूकोसा के बीच में है, और ऑरबैक प्लेक्सस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग दो तरह के न्यूरॉन्स है। अब एक न्यूरॉन्स और है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक न्यूरॉन जो और है वो देखो यहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन, वो यहाँ से अराइज हुआ, इससे सिनेप्स बनाया, इससे भी सिनेप्स बनाया, नीचे की तरफ आया और आकर म्यूकोसा में बहुत सारे जाल के रूप में फैल गए। ये क्या करता है? इम्पल्स क्रिएट करता है, यानी इसमें जो संवेदनात्मक रूप होती है उसको एक्टिवेट करता है। तो ऐसे एक तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये यहाँ से आए नीचे, यहाँ पर सिनेप्स बनाया, फिर ये यहाँ सिनेप्स बनाया, फिर ये नीचे की तरफ चले गए। ये जो होते हैं, ये जब हम फूड खाते हैं और फूड जब हमारे स्टमक के रीजन पे पहुँच जाते हैं तो हमारे स्टमक को पता लगता है कि फूड पहुंच गया है, तो ये वर्क करना शुरू करता है। यानी ये जो न्यूरॉन्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये जब अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं और फूड मिलने के बाद जब हमें पता लग जाता है स्टमक के रीजन को कि फूड आ चुका है, तो ये सिस्टोल डायस्टोल स्टार्ट करता है। अब सवाल आता है कैसे? तो देखो, इसमें जो एसेंडिंग न्यूरॉन है ऊपर का, वो न्यूरॉन्स एक जो भी केमिकल रिलीज करेगा वो केमिकल को बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एक्टिवेट करेगा, वर्क को एक्टिवेट यानी सक्रिय कर देगा। और ये जो डिसेंडिंग है न्यूरॉन, ये जो केमिकल रिलीज करेगा ये इनहिबिटर होगा। इनहिबिटर का मतलब होता है काम को रोक देगा, तो ये काम को रोक देता है और ये काम को एक्टिवेट कर देता है। तो देखो, सबसे पहले बहुत इजी, और एक बार समझ गए तो आपको शायद ही ये कभी भूलोगे। ये जो सर्कुलर मसल्स है, इस रीजन में जो न्यूरॉन्स है, जो डॉर्सल वाला न्यूरॉन आया है जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाया है, वो न्यूरॉन्स यहाँ पर एक विशेष तरह के केमिकल रिलीज कर रहा है। ये केमिकल रिलीज करेगा, तो मैंने कहा था ये एक्टिवेटर के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ से जो केमिकल रिलीज होगा वो इसके पास आएगा, इसके पास केमिकल आएगा एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन। और एसिटाइल कॉलिन आते ही यहाँ का जो पार्ट है, ये रीजन यहाँ पर एक्टिवेट होकर के ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये सिकुड़ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, ये सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्शन इसमें हो जाएगा। इसी समय जो वेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जो डिसेंडिंग न्यूरॉन्स के रूप में है, डिसेंडिंग न्यूरॉन्स भी केमिकल रिलीज करेगा, और डिसेंडिंग न्यूरॉन का केमिकल यहाँ से जाकर यहाँ पर रिलीज होगा, और डिसेंडिंग न्यूरॉन जो केमिकल रिलीज करेगा वो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर में, और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर में जब जाएगा तो जो केमिकल यहाँ जाएगा उस केमिकल के नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, शॉर्टकट में NO। और दूसरा होता है VIP, वैसो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड, वैसो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही केमिकल यहां से रिलीज हुआ, ये केमिकल कौन रिलीज कर रहा है? तो मैंने कह दिया डिसेंडिंग न्यूरॉन, तो डिसेंडिंग न्यूरॉन से केमिकल गया यहाँ पर रिलीज हुआ। जैसे रिलीज हुआ ये जो है इनहिबिट करेगा, तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसका काम रुक जाएगा। इनहिबिट का मतलब रोकना, जब इसका काम रुक जाएगा, इनहिबिट का मतलब रोकना होता है, तो जब इसका काम रुक जाएगा तो रुकते ही ये रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स,
यानी इसका जो मसल्स है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर वो शिथिल हो जाएगा। रिलैक्स का मतलब वो शिथिल या एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये रिलैक्स और ये कॉन्ट्रैक्ट, तो सिस्टोल हो गया या डायस्टोल हो गया, कोई एक कंडीशन हुआ, तो मान लो सिस्टोल हो गया। तो जैसे ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये पार्ट ऐसा हुआ तो ये फूड यहाँ से आगे बढ़ गया, क्योंकि रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ सिस्टोल हुआ, पेरिस्टोलिसिस, तो ये फूड आगे बढ़ गया। अब क्या होगा, अब इस फूड को ब्रेक डाउन भी होना होगा और आगे जाना होगा, तो फिर ये फैलेगा। जब ये फिर फैलेगा, जैसे स्टोमक ये सिस्टोल हो गया मान लो, क्योंकि इस वाला पेशी में रिलैक्सेशन है, इस वाला पेशी में कॉन्ट्रैक्शन है, तो सिस्टोल डायस्टोल के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट वर्क कर रहा है, तो ये सिस्टोल करा रहा है। तो सिस्टोल कराने में यहाँ पर काम कर रहा है नाइट्रस ऑक्साइड और वीआईपी, और यहाँ पर वर्क कर रहा है एसिटाइल कॉलिन नाम के केमिकल। दूसरे केमिकल भी आ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एसिटाइल कॉलिन के रूप में, सब्स्टिट्यूट प्रोटीन के रूप में भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटाइल कॉलिन। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब थोड़ी देर के बाद ये जैसे एक बार सिस्टोल हुआ, अब डायस्टोल होना होगा, तो जैसे डायस्टोल होना होगा ये कुछ सेकंडों में ही अगला स्टेप इसके ऑपोजिट होगा। अब क्या होगा, अब ये जो आपका ऊपर से नीचे से, सॉरी, ये वाला जो न्यूरॉन्स है ये केमिकल रिलीज करेगा और ये केमिकल ऊपर तरफ जाएगा। फिर इसमें नॉर्मली फॉर्म में जो पार्ट यहाँ हो रहा था उसका ऑपोजिट होगा। कैसे, यहाँ पर एसिटाइल कॉलिन रिलीज हो रहा था, अब यहाँ पर एसिटाइल कॉलिन रिलीज होगा, यहाँ पर अब एसिटाइल कॉलिन रिलीज होगा। जैसे ही एसिटाइल कॉलिन यहाँ पर रिलीज हुआ, और आप जानते हो कि जो डॉर्सल वाला होता है वो एसिटाइल कॉलिन रिलीज करता है, तो डॉर्सल वाले ने यहाँ पर एसिटाइल कॉलिन रिलीज कर दिया। तो डॉर्सल वाले ने जैसे एसिटाइल कॉलिन रिलीज कर दिया तो यहाँ क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ हो जाएगा अब कॉन्ट्रैक्शन, अब यहाँ हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, ये सिकुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट सिकुड़ेगा। ओके, इस समय यहाँ पर जो हुआ था इसका ऑपोजिट यहाँ होगा। यहाँ पर कौन आया था, एसिटाइल कॉलिन, अब यहाँ पर आ जाएगा एसिटाइल कॉलिन नहीं, अब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ के न्यूरॉन्स, जो ये वेंट्रल वाला है, क्योंकि वेंट्रल इनहिबिटर का काम करेगा, तो वेंट्रल वाला यहाँ पर केमिकल रिलीज करेगा, और जो केमिकल इसके पास से रिलीज होगा, इनके पास आएगा, उस केमिकल का नाम मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ NO और VIP, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रस ऑक्साइड और VIP का नाम है वैसो एक्टिव इनहिबिटर पेप्टाइड। तो ये आ जाएगा, ये दोनों आते ही ये जो पार्ट है, ये पार्ट फिर से उसमें क्या हो रहा था, रिलैक्स, तो अब इसमें ये हो जाएगा रिलैक्स, अब ये हो जाएगा रिलैक्स। यानी एकदम सिंपल है, इतना जो कहानी मैंने आपको समझाया बिल्कुल समझो कि एक सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पर जाल बना रहा है। जब हम भोजन लेते हैं, फूड हमारे ल्यूमेन से गुजरता है, तो हमारे स्टमक को इस सेंसरी न्यूरॉन से पता लग जाता है कि फूड आ चुका है, अब इसे पेरिस्टोसिस करना है। तो ये क्या करता है कि जो डॉर्सल वाला नर्व है, न्यूरॉन्स है, वो केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एसिटाइल कॉलिन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ये एक्साइटेटरी के रूप में काम करते हैं। और इसी समय ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, वहाँ पर जो वेंट्रल पार्ट है वो केमिकल रिलीज करता है, वेंट्रल न्यूरॉन, और वो NO और VIP रिलीज करता है। NO और VIP रिलीज करता है तो रिलैक्स हो जाता है, यानी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने रिलैक्स कर लिया। इसी के ऑपोजिट फिर इसने NO और VIP, क्योंकि इसके पास तो दोनों का कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन भी है, तो इसके बाद यहाँ पर NO और VIP रिलीज होगा। जैसे NO और VIP रिलीज होगा ये रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये ऑपोजिट में रिलैक्स होना है, और वो क्या हुआ था, रिलैक्स हुआ था, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये एसिटाइल कॉलिन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सिस्टोल डायस्टोल आराम से होगा, और ये भोजन इस प्रकार से सिस्टोल डायस्टोल के फंक्शन द्वारा आगे बढ़ता जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और इस प्रकार से ये एवरोल पार्ट से होता हुआ बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, बाद में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो फूड हमारे स्टोमक में आने के बाद इसको पार करने में ये काम करते हैं। तो आप लोग बहुत सिंपली याद रखिए कि हमारे पास जो नीट लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप इसको दो तरह से समझें कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स लेयर है, इनके बीच में जो भी न्यूरॉन्स है वो दो तरह के न्यूरॉन्स है, डिसेंडिंग असेंडिंग के रूप में, और इस पार्ट को ऑर्बिक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस के रूप में कहते हैं।
और सर्कुलर मसल्स लेयर और ये जो हमारा म्यूकोशा का पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन्स है उस न्यूरॉन को मेसनर प्लेक्सस के रूप में कहते हैं। तो एक ऑर्बिक प्लेक्सस, एक मेसनर प्लेक्सस, दो प्लेक्सस, ये नाम याद रखिए। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के रूप में कौन सा प्लेक्सस है, तो ऑर्बिक प्लेक्सस या इसी का नाम है मेजेंट्रिक प्लेक्सस। और सर्कुलर मसल्स और म्यूकोसा के बीच में कौन सा न्यूरॉन है, तो सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मेसनर प्लेक्सस। ये नाम से हजारों बार आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं और आने वाले समय में भी बनेगा। बट आपको ये समझना चाहिए कि सर रटना कोई चीज़ नहीं है कि सर ऑर्बिक प्लेक्सस रट लिए, मेसनर प्लेक्सस रट लिए, एग्जाम में जाकर भूल भी तो सकते हो। अब आपका कोई सवाल कर ले कि सर ये स्टमक सिस्टोल डायस्टोल करता कैसे है, तो अब आप समझा सकते हो कि सर इसमें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, तो नो डाउट मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, बट मोटर न्यूरॉन के जगह पे इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग और जो भी इसमें दूसरे तरह के मेसनर प्लेक्सस है ये सब उसके जगह काम करते हैं। बट सेंसेशन मिलना चाहिए, फूड आया, सेंसेशन मिला सेंसरी से, और फिर ये इस तरह से काम करते हैं। तो बस ये जो याद रखिए, असेंडिंग न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव रूप में काम करेगा और रिसेंडिंग न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर के रूप में काम करेगा। तो आपने अभी अभी देखा कि इस पूरे टॉपिक में न्यूरोट्रांसमीटर डिसेंडिंग के रूप में, इनहिबिटर रूप में काम करने से रिलैक्स हो रहा है और इसके रूप में काम करने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट में कौन काम कर रहा है, एसिटाइल कॉलिन, तो इसमें एसिटाइल कॉलिन नाम के एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिलैक्सेशन में इनहिबिट करने का काम कौन कर रहा है, तो इसमें एनो और वीआईपी काम कर रहा है। तो इस तरह से कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स और पूरा पाथवे के द्वारा इस रीजन में फूड का डाइजेशन होता है। तो आपने ये देखा कि स्टोमक के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, स्टोमक का वाल कैसा होता है, एलिमेंट्री कैनाल। और याद रखना ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये ओसोफेगस से लेकर जो एनस का रीजन है वहाँ तक होगा, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, हर रीजन पे, ओसोफेगस में, एवरी रीजन इन आवर बॉडी ऐसा होगा और 4 लेयर के फॉर्म में ये बने होंगे। ओके स्टूडेंट।